Hello everyone, welcome to the post-contest discussion session where we will be taking starters 155 division 4 and we will be discussing the first questions. Let's start with the first one. So the first one says that chef must spend at least 7 days in prison to be released on payroll. Okay, and you are given the number of days he spent and you have to output a yes if he will be released. So the condition is that you are given basically what you are given. You are given with the number of days he spent. Okay, and chef must spend at least 7 days, right? At least 7 days must be spent in the jail for coming out. Okay. So if the given number of days spent n is greater than equal to 7, then you can print a yes at least, or else you can print a no. That is all for this question. So let's see the implementation part. So for the implementation part, like you don't need to like have a look on my template. You just see the basic logic. So it says that second. So this says that you are taking n as input here. So if n is greater than equals to 7, you print a yes, else you print a no. So that is all for this. Let's move to the second question. The second question says that chef loves rectangles and he wants to draw a line, draw one rectangle with the largest area possible. But the problem is that he has only some limited amount of ink left to draw a total of n unit length line. Okay. And you have to figure out the largest area of the rectangle, right? So which he can draw. So thing is that so basically you are given with an input n. Okay, what does n symbolizes? N symbolizes the amount of ink left such that you can draw at max n unit length line. Okay, and you have to make a rectangle, of course. So if this is a rectangle that you can make, like this is length L and this is length breadth B. है ना? So if you sketch out this rectangle, so you will be like covering the perimeter, right? And the perimeter of a rectangle is 2 times length plus breadth. So this thing is um, less than equal to given n, right? So this is the case. So up what you have to find, you have to find the max value of L into B. That is the area, right? You have to maximize this thing. So now if you have to maximize this thing, तो तुम इसमें एक चीज देखो कि कंसिडरिंग दिस गिवन इक्वेशन ये हमारे पास है, राइट? सो इसमें अगर ऐसे कर लेते हैं कि L plus B is less than equals to just a second, L plus B should be less than equals to n by 2, ठीक है? और अगर मैं इसका फ्लोर ले लूं तो दिस वुड बी लाइक लेस देन इक्वल्स टू फ्लोर ऑफ n by 2 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू होगी तो सेफर साइड के लिए फ्लोर लेके चलते हैं, ठीक है? तो L प्लस बी तुम्हारे पास फ्लोर ऑफ n by 2 आ जाएगा, है ना? और अगर मैं इसके प्रोडक्ट को अगर मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, ठीक है? अगर तुमको कभी भी ऐसा हो लाइफ में कि तुमको a प्लस बी गिवन हो एंड यू हैव टू मैक्सिमाइज a इनटू b, राइट? तो तुम क्या करते हो कि जो भी नंबर a प्लस बी है, लेट्स से इफ a प्लस बी इक्वल्स टू x, तो तुम क्या करते हो, a और b में इक्वल इक्वल बांटने की कोशिश करते हो, है ना? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लाइक AMGM. तो मतलब प्रोडक्ट मैक्सिमाइज तब होता है जब तुम a और b में इक्वल वैल्यू बांट दो, ठीक है? मतलब अगर a प्लस बी एक्स है तो तुम a में x बाई 2 रख दो और b में भी x बाई 2 रख दो, गिवन दैट कि ये दोनों इंटीजर्स हैं। तो अगर x ऑड हुआ तो एक तो फ्लोर कर लो और एक तो सील कर लो, ठीक है, फॉर सेफर साइड। तो तुम क्या कह सकते हो कि a विल बी फ्लोर ऑफ x बाई 2 एंड b विल बी सील ऑफ x बाई 2, ठीक है? तो इस तरीके से अगर तुम करो तो ये प्रोडक्ट जो होता है a इंटू बी दैट विल बी मैक्सिमाइज्ड, राइट?
A into B gets maximized. तो सिमिलरली अगर तुम यही चीज यहाँ पे करना चाहते हो, है ना, इस वाले पोर्शन पे, तो क्या करोगे? तो यहाँ पे ये 1/2 था ना। तो इफ L प्लस बी इज n/2, तो तुमको क्या करना चाहिए? तुमको ये करना चाहिए कि L को तुम क्या करो, L को तुम रख दो, ये जो भी वैल्यू n/2 आएगी, ठीक है, लेट्स से n/2 इज y, ठीक है, तो n को, L को तुम रख सकते हो y/2 का फ्लोर, और b को तुम रख सकते हो y/2 का c, ठीक है। अगर तुम ये ऐसे रख दो तो L इंटू बी मैक्सिमाइज हो जाएगा। ओके, सो इज दिस लॉजिक क्लियर? है ना? लाइक दिस इज वेरी वेरी मैथमेटिकल, तो इसमें कुछ ऐसा डाउट होना ही चाहिए। अगर कुछ हो तो पूछ लेना, राइट? तो लेट्स सी द इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन की अगर इसमें बात करें तो what I'm taking here is, like I'm taking the input, ठीक है, n is taken as input, and n equals to n/2. This is like a seal division, है ना? Sorry, flow division. This is like flow division. तो इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि now what is n? n is now l plus b, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, है ना? तो दिस इज नाउ l plus b। तो अब मुझे अगर l और b निकालना है तो l और b क्या होगा? अगर अगर मेरा n इवन है ना, तो मैं इक्वली डिवाइड कर सकता हूँ, है ना? अगर n इवन हुआ तो मेरे को मतलब लाइक फ्लोर और सील लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं सीधा क्या कर सकता हूँ? आंसर वुड बी n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, है ना? मतलब कि ये देखो, अगर अगर n/2 तुम्हारी इवन वैल्यू आ जाती है ना, इफ n/2 इज इवन, n/2/2, दैट वुड बी लाइक, अगर तुम इसको इवन और हाफ करो तो इट वुड बी लाइक अगर तुम L इंटू बी करने की कोशिश करोगे ना, दैट वुड बी लाइक n/4 इंटू n/4, राइट? एक सेकेंड। हाँ, राइट राइट राइट। तो n/2, n/2 इज L प्लस बी, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि इसको हम अगर इसमें आधा आधा बांट देते हैं, तो अगर n/2 इवन आता है तो इसका फ्लोर और सील दोनों बराबर होंगे, है ना? दैट वुड बी लाइक n/4 इंटू n/4, ठीक है। इट कम्स आउट टू बी n² डिवाइडेड बाय 16, राइट? तो मैं कोड में यही चीज कर रहा हूँ, बट द थिंग इज कि मैंने n को n/2 से पहले अपडेट कर दिया है ना, राइट? तो दिस इज एज गुड एज कि इस n/2 को तुम n से अपडेट कर दो, तो ये यहाँ पे n/2 आ जाएगा, ये यहाँ पे n/2 आ जाएगा, और ये n² बाय 16 की जगह n² बाय 4 हो जाएगा। दैट इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन, है ना? तो एज यू कैन सी हेयर, इट इज लाइक आई हैव अपडेटेड n/2 एंड यहाँ पे n² बाय 4। दिस इज द केस व्हेन n/2 इज इवन, और n/2 अगर इवन नहीं होगा तो सिंपली तुम क्या करो, n/2 का फ्लोर ले लो। n/2 का फ्लोर एक बार और लोगे तो दैट इज n/2 अगेन, कि n को यहाँ पे अपडेट कर दिया है, और तुम n/2 का सील ले लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दिस विल बी योर मैक्सिमम एरिया, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, राइट? Okay, so let's move to the next part. Next question. The next question says that there are two versions of this problem. So I will be discussing both the versions together, and I will be just giving you a general solution जो दोनों पे काम करेगा, ठीक है? So the problem is that you have to construct a matrix A such that size n cross m, such that the GCD of every row and every column is 1, and this is the thing that Aij is of range from 2 to 1e9. Okay. The difference between the easy version and the hard version is that you don't need to minimize the sum of the matrix in this version. Okay. And in the hard version, you have to minimize the sum. Okay. So that is the question. So let's see what the question says. Yeah. Question says that you are given with values n and m, and you have to construct a matrix. You have to construct a matrix of order n cross m
such that if this is like A11, A12, A21, A22, A31, and A32. Okay. So the question says that we have to construct this matrix such that GCD of each row, है ना, and GCD of each column is one. ठीक है, मतलब this is one and इसका GCD is one. Row wise and column wise GCD should be one. ठीक है. And for the easier version, like you can keep aij as like the limit on aij is like aij can be chosen from a range of 2 to 109. ठीक है. And also हाँ, also the thing is कि easy version में you have to you don't care about the sum. ठीक है, what would be the sum of the all the elements? You can keep any element in this range any number of times, right? But for the harder version you have to minimize the sum. ठीक है. अगर हम इजी वर्जन को सॉल्व करते सिर्फ, है ना, तो हम क्या सोचते हैं? अब तुम ये देखो कि मान लेते हैं तुम एक रो को कंसिडर करो. ठीक है, अभी तुम एक सिर्फ रो को कंसिडर करो. अगर हम सिर्फ एक रो को कंसिडर करते हैं तो रो में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मान लेते हैं कि A1, A2, A3 सो ऑन टिल सपोज AM. ठीक है, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एक रो में. ठीक है, तुम इसमें ये देखो कि अगर इसमें से एक ही नंबर 1 हो जाता तो पूरी रो का जीसीडी 1 हो जाता. यस और नो, है ना? बट हम क्योंकि 1 रख नहीं सकते हैं, क्वेश्चन सेज दैट कि द मिनिमम नंबर यू कैन पुट इज 2. ठीक है, हम 1 रख नहीं सकते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 बनाने की कोशिश करते हैं. गिवन दैट कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड m इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स एटलीस्ट दो एलिमेंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे. एटलीस्ट 2/2 की ग्रेड तो होगी ही होगी. तो हम दो एलिमेंट्स चूज कर सकते हैं. ठीक है, एटलीस्ट दो एलिमेंट चूज कर सकते हैं. और दो एलिमेंट्स को चूज करके अगर तुमको जीसीडी 1 बनाना हो, ठीक है, वो कब होता है? वो होता है को प्राइम नंबर्स पे, राइट? को प्राइम नंबर्स का जीसीडी 1 होता है. वाई? को प्राइम नंबर्स क्या होता है? को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम. मतलब ऐसे प्राइम नहीं है. जैसे मान लो 24 है एंड 25 है. दीज आर नॉट प्राइम नंबर्स, राइट? बट दे आर रिलेटिवली प्राइम. दैट मीन्स कि अगर इन दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इन दोनों का जीसीडी 1 आता है, राइट? अगर गिवन एनी टू नंबर्स का a कॉमा b का जीसीडी 1 आता है देन दे आर सेड टू बी रिलेटिवली प्राइम, दैट इज को प्राइम नंबर्स. ठीक है, तो ये पेयर ऑफ नंबर के लिए डिफाइन होता है. एंड जनरली इट इज सीन की मतलब जनरली क्या मतलब ये होता ही है कि एडजेसेंट एलिमेंट्स जो होते हैं, एडजेसेंट एलिमेंट्स आर ऑलवेज को प्राइम. ठीक है, एडजेसेंट एलिमेंट्स ऑलवेज को प्राइम होते हैं, मतलब उनका जीसीडी हमेशा 1 होता है. अब तुम खुद सोचो कि मिनिमम एलिमेंट 2 हो सकता है ना? और उसके बाद तुम कितना भी बड़ा एलिमेंट रख सकते हो टिल 1 ही 9. अगर तुमको एक रो में, मतलब कि ये जो हमारे पास रो दी हुई थी ना, एक सेकेंड. हाँ, यस. सो ये जो हमको रो दी हुई थी, तो अगर इसमें मैं कि एन और एम का साइज एटलीस्ट दो तो होगा ही होगा. अगर मैं सिर्फ इन दोनों एलिमेंट्स को पकड़ के अगर मैं 2 और 2 का एडजेसेंट 3 रख दूं, है ना, इसका मतलब ये दोनों जीसीडी 1 बना देंगे. और क्योंकि जीसीडी 1 हो चुका है तो बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ जीसीडी 1 ही हो जाएगा अल्टीमेटली, अगर पूरे रो का लोगे तो. यस और नो? तो 1 था नहीं बट हमने 1 बना लिया. और उसके लिए हमको एटलीस्ट दो एलिमेंट्स चाहिए थे. इसका मतलब एटलीस्ट दो एलिमेंट्स तो मैं अलग रखने ही पड़ेंगे एक रो में. बाकी सबको मैं एक एक जैसा रख सकता हूँ, है ना? तो अब क्वेश्चन सिंपल है. क्वेश्चन बस इतना सा रह गया. अगर मुझे इजी वर्जन सॉल्व करना होता, इफ आई डोंट केयर अबाउट द सम, तो मैं क्या करता? इफ आई डोंट केयर अबाउट द सम, अगर मुझे ये मैट्रिक्स बनानी होती, मान लेते हैं, ठीक है,
दिस इज लाइक 4x4 की मैट्रिक्स है। अगर मुझे ये भरनी होती तो मैं क्या करता, यहाँ पे 2 3 रखता, और यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ मैं, ठीक है, आई डोंट केयर, डोंट केयर, मतलब 1E9 से छोटा कुछ भी रख सकता हूँ। और मैं इस वाले में 3 2 रखता, ठीक है, ताकि इस रो का काम हो जाए। या फिर तुम इसको रिपीट भी कर सकते हो, 2 3 2 3, है ना, 3 2 3 2, 2 3 2 3, और 3 2 3 2। अगर तुम ऐसे रोज रिपीट करते रहोगे तो काम तुम्हारा हो जाएगा, है ना। बट अगर अब इसका हार्डर वर्जन अगर हम डिस्कस करें तो ये इजियर वर्जन है, इजियर वर्जन इज सॉर्टेड, है ना। बट अगर हम इसका हार्डर वर्जन डिस्कस करते हैं, लाइक इफ आई हैव टू मिनिमाइज द सम, तो मैं क्या करता, तुम ये देखो कि एक रो में मेरा काम सिर्फ एक पेयर ऑफ 2 3 रखने से चल जा रहा है ना, तो ये एक्स्ट्रा 3 रखने की क्या जरूरत है, इसको हटाओ। दैट मीन्स कि मिनिमम एलिमेंट जो तुम रेंज में पुट कर सकते हो दैट इज ए आई जे इज 2, तो सारे एलिमेंट्स को 2 रख दो ना, बस एक रो में एक 3 रखो, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर इस वाले रो की बात करें, इस वाले रो में भी इस 3 से काम चल जा रहा है ना, इस 3 की क्या जरूरत है, इसको भी 2 बना दो। सिमिलरली अब इस वाले में तुम ये देखो कि यहाँ पे एक 3 होना है वो बात ठीक है, बट इस कॉलम में 2 बार 3 हो जाएगा, तुम यहाँ पे 2 बना दो और यहाँ पे 3 रहने दो, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर 3 रखोगे तो ये इस कॉलम में 2 बार 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 रख दो और इस 3 को चलने दो। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम रो में सारे टूज मेंटेन करो, बस एक 3 छोड़ो। एंड सिमिलरली तुम कॉलम में भी सारे 2 मेंटेन करो एंड एक 3 छोड़ो। दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो, राइट। इसके अलावा तो और कोई बेस्ट केस सिनेरियो हो ही नहीं सकता सम के रिस्पेक्ट में। कहने का तात्पर्य इतना सा है कि तुम ऐसा करो कि, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है नहीं है, है ना, तो तुम इसको जनरलाइज कर सकते हो कुछ इस तरीके से कि जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं बेसिकली, है ना, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, तुम उन पे क्या करो, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स पे 3 रखो, ठीक है। मान लेते हैं कि तुम्हारी पूरी मैट्रिक्स 2 से भरी हुई थी, ठीक है, मान लो ऐसा कि पूरी मैट्रिक्स तुम्हारी 2 से भरी हुई थी, ठीक है। तुम डायगोनल एलिमेंट्स को बस चेंज करना शुरू करो, डायगोनल एलिमेंट्स पे तुम 3 रख दो, यहाँ पे 3 रख दो, यहाँ पे 3 रख दो, यहाँ पे भी 3 रख दो, ठीक है। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि इस वाली 3 ने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को सॉर्ट कर दिया, ठीक है, मतलब इनका जीसीडी 1 कर दिया। इस वाली 3 ने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को देख लिया, इसने थर्ड रो थर्ड कॉलम को देख लिया, इसने फोर्थ रो थर्ड कॉलम को देख लिया। बट अब कुछ अनइवन चीजें बच जाएंगी, या तो 2 केसेस होंगे, या तो n ग्रेटर देन m होगा या m लेस देन n होगा। अगर इक्वल है तो ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी, है ना, इसके आगे कभी बात बढ़ेगी नहीं, राइट। बट इन दोनों केसेस को हैंडल करने के लिए तुम अलग से फिलिंग कर दो, मतलब जैसे पूरी पूरी मैट्रिक्स में टूज भरे हुए थे, तो तुम पहले प्रिंसिपल डायगोनल को फिल कर लो, और फिर जो भी एक्स्ट्रा बच जाता है, जैसे यहाँ पे कॉलम्स एक्स्ट्रा बच गए हैं, तो तुमको इन कॉलम्स में तो 3 रखना पड़ेगा ना, तुमने रो वाइज तो 3 3 3 रख दिया है, बट कॉलम वाइज तुमने सिर्फ 4 बार 3 रखे हैं, इन इनमें रखना पड़ेगा, तो तुम यहाँ पे रख दो, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो इस फिलिंग को कंसिडर करते हुए यू विल मेंटेन बोथ द टू कंडीशंस। व्हाट आर द टू कंडीशंस? पहला, सम सम वुड बी मिनिमम, राइट, सम वुड बी मिनिमम। एंड दूसरी कंडीशन रो वाइज एंड कॉलम वाइज जीसीडी वुड बी 1, राइट। I hope this solution is clear so far. So what we will be doing, we will be initializing whole matrix with 2 first, and then we will be changing the principal diagonal first. Okay, प्रिंसिपल डायगोनल पे 3 रखेंगे, से एन स्क्वायर वाली या एम स्क्वायर वाली चीज जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा कॉलम्स बच गए हैं या फिर एक्स्ट्रा रोज बच गए हैं, वहां पर तुम जैसे ये लास्ट रो के एक्स्ट्रा कॉलम्स में 3 रख दो, है ना। सिमिलरली अगर एक्स्ट्रा रोज बची होती, तुम क्या करते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता कि एक सेकेंड, अगर कुछ ऐसा होता कि रोज ज्यादा होती, ठीक है, मान लो 1 2
मान लो कुछ इस तरीके का सिनेरियो होता, तो यहाँ पे 2 ही कॉलम्स है और 1, 2, 3, 4, 5 रोज़ है। तो तुम प्रिंसिपल डायगोनल भरने जाओगे तो क्या करोगे, यहाँ पे 3 रखोगे, यहाँ पे 3 रखोगे। ठीक है, अब 3 रोज़ बच गई, तो तुम क्या करो, आखिरी वाले कॉलम में यहाँ पे 3, 3, 3 रखते जाओ। ठीक है? जैसे वहाँ पे आखिरी रो में 3, 3, 3 रखे जा रहे थे, यहाँ पे आखिरी कॉलम में 3, 3, 3 रखते जाओ। इससे क्या होगा, इन बाकी बची हुई रोज़ के लिए जीसीडी 1 हो जाएगा, राइट? So this can be handled. Okay. So let's see. Just a second. Let's see the implementation part. So implementation is simple. Let me show you the code for the harder version. Okay. That would be appropriate. Both are similar, but during the contest, I like changed them a bit. Okay. Okay. So this is the code. Like you have taken the inputs N and M here. Okay. And I have created a 2D vector. You can also create a 2D matrix. That is up to you. But I have created a 2D vector just to initialize it with 2. Okay. मैंने n क्रॉस m का एक वेक्टर बनाया. I have initialized the whole vector with 2. ठीक है. Now the thing is कि I will keep I will take the minimum of m and n. Why minimum? Like if m and n का जो भी minimum होगा, like if m is minimum, then size of square matrix would be m square और else it would be n square. ठीक है. तो प्रिंसिपल डायगोनल्स को भरने के लिए मैंने मिनिमम तक जाऊंगा. ओके. फ्रॉम I equals to 0 to I less than val is like minimum of m and n, right? And I will update ARR of I comma I, है ना? That is my diagonal element. Okay. So I will update my diagonal element with 3. Now the rest is that if n is greater than m, right? If this is the scenario, if n is greater than m, then you can just a second. I think this is not needed. This is redundant. Okay. This is redundant, and what I'm doing here is if n is greater than m, obviously number of rows ज़्यादा है यहाँ पे, right? Number of rows are greater, and what I will do, I will start from I equals to m, like in this scenario. Like यहाँ पे क्या होगा कि अगर जैसे यहाँ पे number of rows 5 थी, ठीक है? Like n is m, n is 5 and m is 2. ठीक है. तो तुम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग अगर देख रहे हो तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 0, 1 एंड 2. तो ये जो 3, 3, 3 तुमको रखना है, दैट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम रो नंबर m. ठीक है. रो नंबर m से तुम शुरू कर सकते हो और तुम्हें क्या करना होगा, ARR ऑफ i, मतलब ये जो आइटरेटर है, कॉमा m-1, है ना? इस कॉलम नंबर वुड बी m-1, 0, 1. इस कॉलम नंबर वुड बी m-1. इसको तुम 3 से अपडेट कर दो. ठीक है. So this would be the implementation for this. ठीक है. So in this scenario, when n is greater than m, you will update ARR of I comma m-1 with 3, and else if like uh, if like m is greater than equal to n. ठीक है. Scenario में number of columns या तो ज़्यादा होंगे या बराबर होंगे. In any scenario, what you will do, similarly जो तुमने यहाँ पे m-1 किया था, this will be n-1th row. You will keep updating the row. The row would be constant. ठीक है. एंड तुम उसके आगे आने वाले एक्स्ट्रा कॉलम्स में 3 रख दोगे. ठीक है. सो दैट इज ऑल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड फाइनली यू कैन प्रिंट योर आंसर. ठीक है. ये जो 2D वेक्टर है, यू कैन प्रिंट दिस. ठीक है. सो दैट इज ऑल फॉर एक्सप्लेनेशन, आई गेस. लेट्स मूव टू द where is the next question. Let's move to the next question. Just give me a moment. The question says that you are given two strings here, SNT, length n and m, right?
and you can perform the following operation on any of the strings. You can replace a substring of the first character with you can replace a substring of the string with its first character. ठीक है, like ठीक है this. What is the minimum number of operations to make both the strings equal? So the thing is, you are given two strings of length n and m. ठीक है, so you are given s, you are given t. S is of length n and t is of length m. ठीक है, अब तुमको वो ये बोल रहा है कि तुम तो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. लेट्स से s was a b c d e f. ठीक है, यू कैन चूज एनी सबस्ट्रिंग ऑफ s. ठीक है, तुम किसी भी स्ट्रिंग की कोई भी सबस्ट्रिंग चूज कर सकते हो, आइदर s और t की एनी सबस्ट्रिंग. डजंट मैटर इट इज आइदर s और t. ये कुछ भी हो सकता है. मान लो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, की एक सबस्ट्रिंग चूज करो. ओके, एंड रिप्लेस दिस विद द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दैट सबस्ट्रिंग. ठीक है, a b e f. दिस इज द ऑपरेशन, राइट? दिस इज द ऑपरेशन. नाउ यू हैव टू टेल कि you have to tell the minimum number of operations you can perform to make both the strings equal. तो इसमें तुम सबसे पहले एक बात समझो कि अगर दो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, दिस इज s एंड दिस इज t, अगर इनके फर्स्ट कैरेक्टर सेम नहीं होते तो क्या ये दोनों कभी इक्वल हो पाएंगे? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं ये ए बी सी समथिंग समथिंग कुछ भी था, ठीक है, एंड ये एक्स बी सी था, ठीक है, मान लेते हैं कि ये दो फर्स्ट कैरेक्टर ही सेम नहीं है. अब तुमको बनाना क्या है? तुमको इन दोनों को इक्वल बनाना है. इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? ऑपरेशन तो तुम यही परफॉर्म करोगे ना कि कोई भी सबस्ट्रिंग चूज करोगे और तुम सबस्ट्रिंग चूज करके बेसिकली उसके फर्स्ट कैरेक्टर से रिप्लेस करोगे. तो अगर स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर ही दोनों में सेम नहीं है, राइट, तो तुम इस ऑपरेशन से तो कभी एसओटी को बराबर नहीं बना पाओगे. यस और नो? क्योंकि ये ऑपरेशन तो बस श्रिंक कर रहा है ना. व्हाट दिस ऑपरेशन इज डूइंग, एक कोई भी सबस्ट्रिंग को बस एक कैरेक्टर में श्रिंक कर दे रहा है, राइट? तो श्रिंक करके तुम पहले कैरेक्टर को तो जनरेट नहीं कर सकते ना, पहले कैरेक्टर को तो बदल नहीं सकते हो. पहला कैरेक्टर तो लाइक कोई भी सबस्ट्रिंग अगर तुमको उसको बदलना है एनी हाउ, तुम्हें शुरू तो यहाँ से ही करना पड़ेगा और तुम इसको बदल तो नहीं पाओगे, राइट? So this simply means that if s of 0 is not equals to t of 0, so in this case the answer is not possible, so I will print a -1. ठीक है, इतनी बात समझ आती है ना? तो लेट्स मूव अहेड. तो एज आई मेंशन्ड कि तुम इस ऑपरेशन को यूज करके बस श्रिंक कर सकते हो, है ना? तो अगर तुम सिर्फ श्रिंक कर सकते हो तो तुम एक बात समझो कि अगर n ग्रेटर देन m है ना, मतलब लेंथ ऑफ s इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ t, या फिर m ग्रेटर देन n है, इन एनी ऑफ दी सिनेरियो जो बड़ी वाली स्ट्रिंग है उसको तुम एनी हाउ श्रिंक करना चाहोगे, है ना? उसको तुम श्रिंक करके पहले क्या करोगे? n इक्वल्स टू m बनाने की कोशिश करोगे. कुछ इस तरीके का कर रहे होगे और फिर तुम चेक करोगे क्या सब में कैरेक्टर्स बराबर हो गए या नहीं हो गए. कुछ ऐसा कर रहे होंगे, ठीक है. तो रैदर देन दिस थिंग, मतलब इसको थोड़ा एक अलग नजरिए से अगर देखें, तो इसको जनरलाइज अगर मैं करना चाहूँ तो तुम इसमें एक बात देखो कि अगर इस वाली कंडीशन को हमने चेक कर लिया है ना, और अब हम इस वाले केस में जहाँ पे आंसर पॉसिबल है, मतलब कि एस ऑफ 0 एस ऑफ टी के बराबर होगा, मैं उस केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो अगर एस ऑफ 0 एस ऑफ टी के बराबर होगा तो इट्स लाइक कि just a second, like let's take some example, right? Let's take okay. So
like the example, second example is like AA, BC, and ABC. Sorry, AAB. हाँ, doesn't matter, मतलब कुछ भी लिख सकता है AAB। अब तुम ये देखो कि दिस इज S एंड दिस इज T। तो अगर S ऑफ जीरो और T ऑफ जीरो बराबर है, तो अगर मैं S पे एक ऑपरेशन करता हूँ, आई चूज होल स्ट्रिंग एज अ सब स्ट्रिंग and replace this substring with the first character, that is A. Okay. Similarly, I operate on T and I replace whole string with the first character, which is A itself. Now are S and T equal? Yes or no? S and T are equal. ठीक है? That means given that S of zero and S of T are equal, तुम at max two operations में हमेशा S और T को इक्वल बना सकते हो। ठीक है? अब हमको सिर्फ इतना सा देखना है कि एटमैक्स टू ऑपरेशंस तो ठीक है। एटमैक्स टू मतलब जीरो और वन कब पॉसिबल है? ऑब्वियसली जीरो तो तब पॉसिबल है जब एस और टी एंटायरली इक्वल हो, राइट? अब बस केस बचता है वन का, कि वन कब पॉसिबल है। तो वन ऑब्वियसली सिंपल है देखना, वन कब पॉसिबल होगा। वन ऑब्वियसली तो पॉसिबल होगा जब, जैसे मान लो आई एम टेकिंग द केस जहाँ पे एन ग्रेटर देन एम है, ठीक है? मतलब लेंथ ऑफ एस इज ग्रेटर देन टी। तो अगर तुम्हारा एस कुछ ऐसा दिखता है, ए बी सी डी ई एफ डी डी, ठीक है? और तुम्हारा टी कुछ ऐसा दिखता है, ए बी सी डी। अब तुम ये देखो, क्योंकि टी छोटा है, टी छोटा है, तो वन ऑपरेशन करने का मतलब क्या है? अगर मुझे एक ऑपरेशन करना है, एक ऑपरेशन में आंसर लाना है, तो ऑब्वियसली बड़ी वाली स्ट्रिंग पे होगा, इस पे होगा। तो अगर एक ही ऑपरेशन में आंसर लाना है, मैं एस पे ऑपरेट करूं, और क्या मैं एक ऑपरेशन में एस को टी के बराबर बना सकता हूँ? कहने का मतलब ये है कि तुम एक ही बार एक सबस्ट्रिंग को चूज कर पाओगे, एंड दैट सबस्ट्रिंग हैज टू बी सम सबस्ट्रिंग या तो एंड की तरफ या शुरुआत की तरफ, सॉरी मतलब या तो मिड में होगी वो सबस्ट्रिंग कहीं पर, है ना? या फिर वो एंड में होगी, राइट? वो स्टार्टिंग में क्यों नहीं हो सकती? स्टार्टिंग में अगर तुम इसको सिंक्रोनाइज मतलब श्रिंक कर दोगे, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर से शुरू होके, ऑब्वियसली मतलब ये फर्स्ट कैरेक्टर से रिप्लेस हो जाएगा ना, अगर तुम इस पूरी स्ट्रिंग को ले लोगे तो। कहने का तात्पर्य इतना है, एक सेकंड रुको। हम्म, तो देखो अब इसमें कहने का मतलब इतना सा है कि एक ही बार ऑपरेशन कर सकते हैं, इस चीज को भूल जाओ, मिड और एंड वाली चीज को भूल जाओ। तुम एक ही बार ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है? अब तुम ये देखो कि अगर मतलब मैं एक ही स्ट्रिंग चूज कर सकता हूँ, तो मैं कुछ भी ऐसी सब स्ट्रिंग चूज करूंगा, कुछ भी हो सकती है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बस एक ही बार कर सकता हूँ। तो अगर मैं ये चीज जस्टिफाई कर लूं, क्या चीज? कि सम प्रीफिक्स ऑफ दिस स्ट्रिंग एंड सम सफिक्स ऑफ दिस स्ट्रिंग एस, ठीक है? मतलब अगर मैं कुछ प्रीफिक्स लिखूं ए बी, और कुछ सफिक्स लिखूं डी, और ये जो बीच की सब स्ट्रिंग है, ये पूरे एक कैरेक्टर से रिप्लेस हो जाएगी, दैट इज सी सेल्फ। क्या ये मेरा टी बन गया? यस और नो? है ना? तो कंडीशन क्या है? कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि तुमको मिनिमम लेंथ देखनी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो काउंट है, जैसे लाइक यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, राइट? एन इज 5 6 7 8 9, एन इज 9 एंड एम इज 5, ठीक है? तो 9 - 5 कम्स आउट टू बी 4, ठीक है? तो एनीथिंग like you can choose a substring size of
लेंथ लेस देन इक्वल टू n माइनस एम, राइट? अगर तुमको वो एक ऑपरेशन करना है, क्यों 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 ये लेंथ n माइनस एम ही मैक्स क्यों हो सकती है? ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम n माइनस एम साइज से बड़ी कोई सबस्ट्रिंग चूज कर लोगे, लाइक हियर इटसेल्फ n माइनस एम इज 4, ठीक है? तो अगर तुम 4 से बड़ी लेंथ की कोई भी सबस्ट्रिंग चूज करते हो, मान लो c से शुरू करना है ना हमको, मान लो c से शुरू करते हुए 5 लेंथ की सबस्ट्रिंग ले लो, ठीक है? 3 3 और 2 5, मान लो d तक। तो 1 2 3 4 and 5, sorry, this has to be like greater than n minus m. हाँ, this is n minus m is n minus m comes out to be 4. हाँ, n minus m plus 1, n minus m plus 1 से कोई भी बड़ी स्ट्रिंग अगर तुम चूज कर लोगे, लाइक यू विल कवर अप टिल दिस, तो होगा क्या कि अल्टीमेटली यू विल बी रिड्यूसिंग द साइज, राइट? यू विल बी रिड्यूसिंग द साइज ऑफ s। मतलब कि s पे अगर तुम 5 से बड़ी लेंथ का ऑपरेशन करोगे तो दैट कम आउट टू बी ए ए बी सी, एंड डी टी वुड बी ए ए बी सी डी। तो ये तो अल्टीमेटली तुमने ज्यादा श्रिंक कर दिया, एक से ज्यादा ऑपरेशन लगेगा अब दोनों को बराबर बनाने के लिए, तो दैट डजंट मेक सेंस, राइट? एट मैक्स तुम n माइनस एम प्लस वन इतनी साइज की सबस्ट्रिंग ही चूज कर सकते हो, है ना? तो या फिर इसको अदर वे बेटर है, मतलब इसका इंट्यूशन ज्यादा बेटर है, जो दूसरा नजरिया है इसको देखने का। अगर तुम अगर तुम मान लेते हैं कि गिवन दैट n इज ग्रेटर देन m, ठीक है? अगर तुम s में कुछ प्रीफिक्स और कुछ सफिक्स, ठीक है, दिस कैन बी ऑफ वेरिएबल लेंथ, वेरिएबल मतलब आर्बिट्री लेंथ बोल देते हैं, आर्बिट्री लेंथ प्रीफिक्स, आर्बिट्री लेंथ सफिक्स अगर ढूंढ लो, ठीक है, आर्बिट्री लेंथ सफिक्स सच दैट इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करने पे जो भी लेंथ आ रही है ना, मतलब दिस लेंथ ऑफ प्रीफिक्स एंड लेंथ ऑफ सफिक्स, दिस कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, देन योर आंसर इज पॉसिबल। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एग्जाम्पल था, ए ए बी सी डी ई एफ एन डी, ठीक है, एंड ए ए बी सी डी, ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ प्रीफिक्स ले लो और कुछ सफिक्स ले लो, ठीक है, जो कि मैच करता हुआ हो ऑब्वियसली। मान लेते हैं ए ए बी सी, इतना लेता हूँ मैं, ठीक है? चाहो तो तुम पूरा भी ले सकते हो ए ए बी सी डी, है ना? और तुम पीछे से कुछ ले लो, से मान लो जो मैच कर रहा है, तो डी और डी मैच कर रहा है, तो तुम पीछे से ये वाला सफिक्स ले लेते हो। इसकी लेंथ क्या आई? इसकी लेंथ आई 4 यहाँ से और 1 यहाँ से, इसकी लेंथ 5 आ गई, ठीक है? कहने का मतलब ये है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम ये वाली सबस्ट्रिंग चूज कर लो, इस सबस्ट्रिंग को चूज करके ये डी ई और एफ गायब हो जाएंगे, है ना? और ये कॉन्केटिनेट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कुछ प्रीफिक्स और कुछ सफिक्स को जोड़ दिया जाए, है ना, कंटिन्यूअसली, अगर ये सेम है, कुछ प्रीफिक्स और कुछ सफिक्स जो कि सेम है एस और टी में, अगर उनको कॉन्केटिनेट करने पे टी जनरेट हो जा रहा है ना, दैट मीन्स टी ऑफ दैट इज ऑफ लेंथ m। दिस सिंपली मीन्स दैट यू कैन मेक टी इन वन ऑपरेशन आउट ऑफ s। यस और नो? ये चीज क्लियर है? ये चीज समझ आती है? होप दिस थिंग मेक सेंस कि ऑब्वियसली बात है कि अगर तुम 5 से ज्यादा का भी ले सकते थे, राइट, देन 5 भी सेलेक्ट कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पे इस वाले केस में तुम ए बी सी डी भी चूज कर सकते थे प्रीफिक्स। तुम अगर लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और लॉन्गेस्ट सफिक्स देख लो, चलो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है? तुम लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स और लॉन्गेस्ट सफिक्स देख लो, तो दैट वुड बी ऑफ लेंथ 5 प्रीफिक्स एंड सफिक्स वुड बी ऑफ लेंथ 1, लाइक लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच
एंड लॉन्गेस्ट सफिक्स मैच, इन दोनों को सम करो. If this comes out to be greater than equals to n, then obviously t is possible from s in one operation. ठीक है, क्योंकि तुम बीच की एक सबस्ट्रिंग चूज कर लोगे और उसको डिलीट कर दोगे, राइट, और रिप्लेस कर दोगे किसी फर्स्ट कैरेक्टर से. So that would obviously shrink the remaining string and you will get your answer. So that is all for this explanation. Let's see the implementation of this. So implementation is like I have taken the lenses n and m and I have taken the strings input SNT. Okay. So this is the case when the answer does not exist. Okay. That's not. If the answer does not exist, like s of 0 is not equals to t of 0, right? The first character is not equal, then answer is not possible. You can simply print -1 and you can return. And the answer is 0 when they are exactly equal, like lengthwise also and character-wise also. So you can check if they are equal, you can print a 0. And then you have to see when you can make them equal in one operation, right? So I have taken count with 0. So what I am doing, I'm running from I equals to 0 to minimum of n comma m. I don't know whether they are equal, whether they are not. I'm running till minimum of both the lengths, right? So if s of I is double equals to t of I, the characters are equal, I will do a count plus plus. I am counting a prefix here, okay? Longest match prefix. Longest match prefix और अब मैं दो पॉइंटर्स ले रहा हूँ n-1 and m-1. I is n-1, j is m-1. Okay. And what I will do till I is greater than equal to and j is greater than equal to 0. Okay. I will do I minus minus j minus minus and I will see whether s of I and t of j are equal or not. I will check from behind and I will do a count plus plus again. And ultimately, count is greater than equal to minimum of either of the lengths, n or m. Okay. Okay. That simply means you can do the operation in like in one amount of operation, you can make both the strings equal, else you cannot. So you have to print 2. 2 is the maximal answer. Okay. So that was all for this question. Let's move towards the last question. This question simply says that there is an array with an integer array A. Okay. And we create another array out of that array A, array B, where bi is equals to this thing. And you are given the array B and you are asked to find the valid array A. Okay. And it says that solution always exists. Okay. So let's see it here. So the question says that you were given you had an array A. Okay, you had an array A initially. You constructed B out of it such that bi is equals to summation j equals to 0 to I. Okay, ej. This is the summation part. And minus maximum of a0 to ai. Okay, this is the thing, right? A0 to ai. Matlab, this is one based indexing. I am explaining is zero based. Okay. Right. So this is the thing given. Like we constructed bi such this. Now the question is giving me the array B and it is asking me to retrace and find an valid A such that valid A means that this condition is satisfied for the pair of A and B, right? This condition is satisfied. So what we can do uh, some sort of maths here. Look, basically, मतलब, uh, if I were to like tell you कि how I thought of this, that would be कि तुम एक चीज देखो कि bi
B0 की बात करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट की। B0 कैसे बन रहा है? B0 ऐसे बन रहा है कि तुम पहले कुछ प्रीफिक्स सम लो, j इक्वल्स टू 0 से लेके j इक्वल्स टू I तक का। तो दैट वुड बी फ्रॉम 0 to 0, दैट मीन्स A0, ठीक है? माइनस मैक्सिमम ऑफ A0 till AI, and AI is A0 itself. So this maximum of A0 would be A0, and A0 and A0 would cancel out, and B0 comes out to be 0. So in each scenario, B0 is going to be 0. Okay? अब तुम इसमें और अगर फर्दर देखो, तो गिवन दैट कि तुम, दिस सिंपली मीन्स दैट कि A0 को हम कुछ भी रख सकते थे। द रेंज इज लाइक, द रेंज इज आई थिंक, जितना मुझे याद है, द रेंज इज फ्रॉम -2e6 to 2e6, right? This is the thing. मतलब इस रेंज में AI can be. So you choose any number irrespective of what is A0. B0 is going to be always 0, right? तो moving with this thing, तुम ये देखो कि अगर तुम A0 पे, मतलब A0 पे अगर तुम मिनिमम एलिमेंट रख देते हैं, ठीक है? मिनिमम जैसे मतलब कि अगर तुम -2e6 रख देते, या तुम फॉर सेफर साइड मानो 0 रख देते हैं, ठीक है? A0 को 0 ही रख देते हैं, A0 को 0 ही रख देते हैं। तो क्या होता कि जो मेरा BI में जो ये वाला टर्म था, समेशन AJ माइनस मैक्स ऑफ A0 एंड सो ऑन टिल AI। तो ये वाला जो टर्म है ना, दिस थिंग keeps changing, right? Why this things keep changing? Because I have to anyhow generate this PI, है ना? Out of such, I'm finding a optimal value of AI such that I can generate a given PI, right? These things keep changing because I have kept a zero my first index, right? अगर मैं कोई भी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ 1, तो इन दोनों का मैक्सिमम 1 हो जाएगा। अगर इसके आगे कभी मैं 2 रख दिया, तो इन तीनों का मैक्सिमम 2 हो जाएगा। फिर इसके आगे कभी मैंने 3 रख दिया, this comes out to be 3, right? So my maximum would keep changing. If I had to fix this maximum, मान लेते हैं कि मैं कुछ चीज फिक्स करना चाहता हूँ फॉर इजियर लाइक कैलकुलेशंस, तो ऑप्टिमल सिनेरियो क्या होगा? ऑप्टिमल सिनेरियो ये होगा इफ आई कैन चूज एनी आर्बिट्री ए नॉट, why not choose the maximum of the range, that is 2e6, right? If I choose a naught as 2e6, now no matter whatever is a1 or a2 or till an, कुछ भी हो जाए, the maximum of a0 comma a1 till ai is always going out to be 2e6 itself, right? इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो जाएगा रेंज में, है ना? तो चीज बस इतनी सी रह जाती है कि यू वॉच आउट द डिफरेंस। तो उस डिफरेंस को बेटर इंट्यूशन के लिए तुम ऐसे देख सकते हो कि जो बी आई है ना, बी आई इज व्हाट? बी आई इज सम प्रीफिक्स सम ऑफ ए, ठीक है? प्रीफिक्स सम ऑफ ए, समेशन ए जे माइनस दिस मैक्स आई हैव फिक्स्ड, दिस इज यूनिक। तुम बी आई निकाल रहे हो, बी आई प्लस 1 निकाल रहे हो, बी आई -1 निकाल रहे हो, कुछ भी निकाल रहे हो, दिस मैक्स इज फिक्स्ड, राइट? ये चेंज नहीं होने वाला है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर मैं एक और इक्वेशन ढूंढता हूँ सच दैट मैं इस मैक्स को एलिमिनेट कर दूं, ठीक है? आई वांट टू एलिमिनेट दिस मैक्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बी आई -1 अगर लिखना चाहूँ, तो दैट वुड बी समेशन ए जे। This would be from j equals to 0 to I, and this would be from j equals to 0 to m-1 minus this max, ठीक है? अगर इसको और अच्छे से लिखा जाए, और अच्छे से लिखें, तो
this equation, this first equation comes out to be bi equals to a0 plus a1 and so on plus ai minus 1 plus ai, right? Minus max. Okay, this is my first equation. Now, my second equation would be bi minus 1 would be a naught plus a1, so on till ai minus 1, right? We fix sum till I minus 1 minus this max. And if you subtract both these equations, then what are you going to get? Bi minus bi minus 1 comes out to be, this whole thing is going to cancel out, right? These things cancel out and only ai is left. Ai. And since I have fixed max values too, these two also gets cancelled out, right? So I come upon a solution that ai can be found from this thing. That is, ai can be written as bi minus bi minus 1. Okay. Given the fact, what is the fact? I have fixed the max. That is, a naught is 2e6. And this thing holds for every I from 1 to less than uh, n. Okay, in zero based indexing. So ये चीज समझ आती है? Is this thing clear how we are constructing it? Okay. So let's see the implementation part. Implementation again is quite very simple. Uh, I have taken this vector globally, that doesn't matter. What you can do, you can take the input n, that is the size of array b, and then you can take an input b. Okay. The array itself, I have taken it. Okay. And you can assign, basically, you can initialize your array a with 0. Okay. And then you can keep the first element of A as 2e6. That is the max value in the range, right? You can keep A0 as 2e6, and for all the elements, like this is just snippet. You don't need to worry about the snippet. You can like eliminate this also. Okay. So what I'm doing, I'm running the iterator from 1 to less than n. For each I, like I have shown here, for each I from 1 to n, this thing holds that ai is equals to bi minus bi minus 1. That is all, and finally you can print your array. Okay, and that is all. Or this was our last question, like, okay. I hope all the explanations were clear to you, and we will like wrap up with this thing. Okay, so thank you everyone.